Hello and welcome to all of you present here. As students, you already know that I had begun the lesson development of economics chapter first. And in the first video lesson, I had discussed from you so many topics. First of all, I had discussed with you the meaning of development. Then I had also discussed with you that different people have different development goals. Then I had also discussed with you that whatever may be the development for one section of people living in the society, it may not be beneficial to other people, or even it may be destruction to them. And for this we have taken the example of Tehri Dam project on river Narmada, where for the much production of electricity, the height of the Tehri Dam was subjected to be increased, and for this purpose the local living tribes had to be displaced from there, and they were loser, although the electricity which were going to be produced by this project was going to be utilized by the big industrialist. So in one hand, the big industrialist were going to be benefited from that project, but the local tribes people were not going to be benefited, but they were facing heavy loss because they had to leave their villages. Then we had also discussed that how the World Bank compared the different countries, and accordingly we came to know that the World Bank compared the countries of world on the basis of per capita income and average income, and this criteria is utilized by World Bank to compare the different countries. And few countries are known as rich country, few countries are known as developing, and few countries are known as underdeveloped nations. So let us see once again that criteria and have a glance on the per capita income criteria used by World Bank to categorize the different countries. World Bank publishes its reports, and this is the report of 2017, and here we can see the World Bank has utilized the criteria of per capita income to classify the countries. The countries are divided into three groups: rich countries, low income countries, and middle income countries. Those countries were considered to be rich countries where the per capita income annually of a citizen of that country was going to be $12,056 or more than $12,056. तो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम एनुअली $12,056 या उससे ज़्यादा था, उसे रिच कंट्री माना गया. Then low income countries were those countries where the per capita income was $955 or less than $955. And those countries were considered to be middle income countries where the per capita income was in between $12,056 और $955. तो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा एनुअल इनकम $12,056 और $955 के बीच में था, उसे मिडिल इनकम कंट्री माना गया. एंड इंडिया केम इनटू द मिडिल low middle income countries because in 2017 India's per capita income annually was just $1,820 annually. तो भारत में 2017 में प्रति व्यक्ति आय $1,820 था, और इस हिसाब से वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता था. द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. तो जो रिच कंट्रीज हैं, इसमें से कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को शामिल नहीं किया जाता है, चूँकि वहाँ पेट्रो डॉलर है. वहाँ इराक, ईरान, कुवैत, ये सब मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरब, और यहाँ भी बहुत लोगों का इनकम होता है. लेकिन इनको छोड़ करके जो जिनका एनुअली पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज़्यादा है, उन्हें रिच कंट्री माना जाता है. सो दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड वेयर वर्ल्ड बैंक classify the countries on the basis of per capita income. But here we find that there is a limitation of this criteria because the per capita income does not reveal the fact that how the income is equitably distributed among all the citizens of the country. जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कंट्रियों का बंटवारा, देशों का बंटवारा किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि किसको रिच माना जाएगा, किसको मिडिल इनकम कंट्री माना जाएगा, किसको लो इनकम कंट्री माना जाएगा, उसकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमें इस बात का पता नहीं चल पाता है कि जो औसत आय है
उस देश की, वो सभी जनता में एक समान रूप से वितरित है, या केवल कुछ ही लोग ज़्यादा धनी हैं और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गरीब है। और इस बात का प्रमाण हमें इस एग्जाम्पल से मिला था। यहाँ पर हमने कंट्री ए और कंट्री बी को लेकर देखा था। Then we will also discuss with you comparison of three states, Haryana, Kerala, and Bihar. And here we had seen that apart from per capita income, we have taken two other criteria: literacy rate and net attendance ratio. And in this context, we found that although Haryana had much per capita income, but it was far back, or it was lagging in infant mortality rate, literacy rate, and net attendance ratio in respect of Kerala. So the economists think that only per capita income should be not considered as a hallmark to categorize the countries or states as developed or underdeveloped. Some few other criteria should be taken into consideration, and this may be literacy rate, net attendance ratio, infant mortality rate. तो इस आधार पर हम लोग देखा कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का यद्यपि ज़्यादा था केरल से, लेकिन वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के मामले में केरल से बहुत पीछे था. And in this sequence, we have come to know that people don't only seek income, they also need some other things for their betterment of life, and they need respect in society, they need freedom in the society, they need no discrimination in the society. So they need good neighbors, they need good friendship. So in this way, we come to the conclusion that income is not the ultimate goal of individual for the development and betterment of life. They also seek other things, and it includes respect, it includes security, it includes no discrimination, it includes good neighbors, friendship. And in the context of Kerala, Haryana, and Bihar, we had come to know that pockets in money cannot buy everything you need. Pockets in money cannot buy a pollution-free environment. Pockets in money cannot make you safeguard from contaminated diseases. And we have just witnessed that how the world is facing the threat of the pandemic coronavirus. And we consider US most developed nation in the world, but even US could not protect its citizens from the contamination of the coronavirus. So only being per capita income is not going to determine you to being called as a developed nation. So today we will discuss another topic, and very crucial topic, that is Human Development Index, मानव विकास सूचकांक. तो ये मानव विकास सूचकांक क्या है और इसका क्या उपयोग है और इसका क्या मतलब होता है, हम इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और ये एक इंडेक्स होता है, इसमें हर कंट्री को रैंकिंग मिलती है. तो यहाँ भी कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल वर्ल्ड बैंक की तरफ पर कैपिटा इनकम को नहीं लिया जाता है, यहाँ पर एजुकेशनल लेवल और हेल्थ स्टेटस को भी क्राइटेरिया के रूप में लिया जाता है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, एंड हियर the countries are compared on the basis of per capita income, educational level, and health status. This is the different way of comparing the countries in respect of the World Bank. In World Bank, we have seen that World Bank compares the country on the basis of per capita income goals, but we had also seen that there is some limitation of World Bank criteria. Now it is different method of comparing the countries on the three indicators. It is based on per capita income, educational level, and health status. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from the Human Development Report. तो Human Development Report के हिसाब से भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति को थोड़ा देख लिया जाए. Some data regarding India and its neighbor for 2017 and published in 2018. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क. तो यहाँ पर देखिए, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, ये भारत और उसके पड़ोसी देश हैं. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के मामले में देखा जाए तो श्रीलंका का 11,326 है, इंडिया का 6,353 है, मतलब बहुत कम है. म्यांमार का इंडिया से कम है, पाकिस्तान का भी इंडिया से कम है, नेपाल का बहुत कम है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब होता है कि मतलब जो भी बच्चा आपके देश में जन्म लेता है
उसकी औसत आयु क्या रहेगी, वो अधिकतम कितने सालों तक उस देश पर या धरती पर जिंदा रह सकता है। तो जब तक वो कंटेमिनेटेड डिजीज़ या दूसरे चीज़ों से उसकी सेफ गार्ड होते रहेगी, वहाँ हेल्थ स्टेटस सही रहेगा, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहेगी। औसत आयु, तो औसत आयु है मतलब मैक्सिमम स्पैन ऑफ टाइम द पर्सन कैन सर्वाइव इन दैट कंट्री। तो इस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ श्रीलंका का 75 साल है, मतलब वहाँ के लोगों का औसत आयु 75 साल है। भारत का 68.80 है, यहाँ भी इंडिया श्रीलंका से पीछे है। म्यांमार पाकिस्तान भी पीछे हैं, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश आगे हैं इंडिया से। मीन इस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव, तो 25 सालों तक कितने लोग स्कूल में गए उसका एक यहाँ डाटा है। श्रीलंका में 25 सालों उम्र के तक लोग 10% लोग स्कूल जाते हैं, इंडिया में मात्र 6.4 है। इस हिसाब से हर कंट्री को रैंकिंग मिलता है। तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत पब्लिश किया जाता है यूएनओ के द्वारा, और इसमें पर कैपिटा इनकम के अलावे हेल्थ स्टेटस और लिटरेसी लेवल को भी ध्यान में रखा जाता है, और इस हिसाब से इंडिया का 130 रैंक है। Out of 189 countries, India got 130 rank. And Sri Lanka, it is so small country, neighboring country of India, it got 76 position. तो श्रीलंका भारत से बहुत छोटा है, लेकिन उसका 76 पोजीशन है। यहाँ पर देख लीजिए क्या किसका मतलब होता है। SDI stands for Human Development Index. SDI ranks in above total are out of 189 countries in all. तो SDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और ये 189 देशों का रिपोर्ट है। Life expectancy at birth denotes, as the name suggests, average expected length of life of a person at the time of birth. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन का जो संभावित उम्र है, जीने का जो संभावित उम्र है, वो उसका मतलब यही होता है कि जन्म लेने के समय अधिकतम जीने की कितनी मतलब उसकी आयु रहेगी। तो अधिकतम कितने सालों तक वह व्यक्ति वहाँ जिंदा रह सकता है, उसकी औसत आयु क्या हो सकती है। Per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. तो per capita income भी यहाँ पर डॉलर में लिया गया है, और it is assumed here that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. तो यहाँ पर हर डॉलर से हर कंट्री में उतने ही अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं। इस आधार पर कंपैरिजन करने में आसानी होगी। So in this way we come to know that World Bank compare the countries and call some countries developed and some countries underdeveloped and some countries developing on the basis of per capita income. But UNDP report compares the country on basis of 3 different criteria. It not only it also includes per capita income, but apart from per capita income, it includes life expectancy and literacy rate. And in this regard, India have the 113th position out of 189 countries in the world. A small country in our neighbor Sri Lanka is much ahead of India in every respect. तो इस डाटा से हम देखते हैं कि छोटा सा कंट्री श्रीलंका है, हम समझते होंगे कि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से, सूचकांक के हिसाब से वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, उसका 76 रैंक है। India in life expect Nepal and Bangladesh have low per capita income, but they are better from India in life expectancy. तो नेपाल और बांग्लादेश का भी आप देख सकते हैं, इंडिया से में पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे है, लेकिन औसत आयु के मामले में इंडिया का 68.8 औसत आयु है, लेकिन इनका 70.6 और 72.8 है। So when we talk about development, it is people, their health and their well-being is most important. So whenever we talk about development, it does not only include the per capita income, or your income is not the sole goal to be called you as a developed. Your health status, your literacy level and your overall well-being is also taken into consideration. The global challenge of tomorrow drive out our work today, we shape sustainable development worldwide. तो आगे अब क्या चुनौती आने वाली है? Sustainability of development. You all know that all the countries in the world are striving for becoming more and more developed. Those countries who are developing, they are want to reach up to the level of developed nations, and for these purposes they are using resources from this earth. And as much resource you will use, as much problem to environment will be created. तो आपको ये जानना पड़ेगा कि संसार के सभी देश जो हैं, वो जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, वो अपनी विकास करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, और उसके लिए वे रिसोर्सेज का धरती से यूज कर रहे हैं, और ज़्यादा रिसोर्स यूज करने से रिसोर्स की भी कमी हो रही है, और प्लस
इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये जो डेवलपमेंट का जो तरीका है ये सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनाना होगा, विकास के लिए एक नई पद्धति अपनानी होगी, नया मेथड अपनाना होगा जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पड़ेगा। और इसमें हम रिसोर्स को इस तरह से यूज करेंगे कि हमारा ज़रूरत भी पूरा हो और इस धरती पर जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि सारा रिसोर्स हम ही यूज कर लें, भविष्य में कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल भी हैं। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो इसी की बात को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. मान लीजिए कोई कंट्री डेवलप्ड है, या मान लीजिए अमेरिका ही है जो डेवलप्ड नेशन है, तो वो तो चाहेगा कि अगले 50-100 सालों तक उसका यही डेवलपमेंट लेवल बना रहे। वो तो ये नहीं चाहेगा कि उसका डेवलपमेंट डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए तो वो इसी रेट पर रिसोर्स का यूज करते रहेगा। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. तो 1950 के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने विश्व के सभी देशों को यही बात की चेतावनी दी कि जिस तरीके से हम लोग आजकल विकास कर रहे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इससे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं धरती पर। तो इस तरह के हमें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होगा। एंड फ्यू रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, इफ वील कंटिन्यू टू यूज देम एट द सेम पेस दे विल बी गेट एग्जॉस्टेड within 50 or 60 years. Don't talk about renewable resources. Some renewable resources are being overused. देखिए ये एक ग्राउंड वाटर है, जो पीने का पानी हम लोग ज़मीन से निकालते हैं, इसे ये रीन्यूएबल रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश हो सकता है, प्रकृति उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है, लेकिन उसका भी ओवर यूज हो रहा है, उसका भी मात्रा घट रहा है। ये कैसे हो रहा है? वी आर यूजिंग सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए मैनर ऑफ ओवर यूज। तो हम लोग कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ओवर यूज कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो यूज करने के बाद खत्म ही हो जाएगा हमेशा के लिए। एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। भारत में ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो भारत के जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने बतलाया है, जियोलॉजिस्ट लोगों ने बताया है कि भारत में ग्राउंड वाटर की समस्या बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। About 300 districts have reported water level decline of over 4 meters during the past 20 years. तो लगभग 300 जिलों में भारत में ग्राउंड वाटर लेवल 4 मीटर तक नीचे चला गया है। Nearly 1/3 of the country is overusing ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो 1/3 ऑफ कंट्री जो है वो ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। एंड अनदर 25 years 60% ऑफ कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूज। तो अगले 25 सालों में 60% कंट्री का पार्ट इसी तरह से ग्राउंड वाटर का यूज करते रहेगा। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज पार्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है? पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इरीगेशन पर्पसेस के लिए। सो इंडिया में 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 20 सालों में ग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर नीचे चला गया है। और जियोलॉजिस्ट लोगों का कहना है कि नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। कि मतलब भारत में एक देश का 1/3 भाग ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहा है। भारत में 1/3 जनसंख्या जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रही है। और इन अदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग रिसोर्स कंटिन्यूज। अगर इसी हिसाब से वो ग्राउंड वाटर का यूज करते रहे तो अगले 25 सालों में ये 1/3 से बढ़कर 60% तक हो जाएगा। माने अगले 25 सालों में देश की 60% जनसंख्या ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करती रहेगी। तो ये पानी का लेवल तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो फिर ग्राउंड वाटर का भी समस्या आ सकता है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, अंधाधुन यूज कर रहे हैं, भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। Non-renewable resources cannot be replenished as they have a fixed stock on earth. तो यहाँ तो renewable resource के बारे में बताया गया कि उसका ओवर यूज किस तरह से हो रहा है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो उसका तो स्टॉक ही फिक्स है और वो एक बार खत्म हो जाने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट, हम हो सकता है नई रिसोर्स का भंडार खोज लें, लेकिन फिर उसका भी तो उसी हिसाब से यूज होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रूड ऑयल का वर्ल्ड लेवल पर भंडार और उसका कितने सालों तक चलेगा एक डाटा देख लीजिए। जो भी पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबिल हो, केरोसिन हो, ये सब ज़मीन से जो तेल निकलता है ना, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो ज़मीन से तेल निकलता है उसे हम लोग कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसे रिफाइनरी में साफ़ करना पड़ता है, और जब रिफाइनरी में ये ज़मीन से नीचे से तेल निकलता है क्रूड ऑयल, तो साफ़ करने के बाद वो पेट्रोल बनता है, फिर केरोसिन बनता है, फिर मोबिल बनता है, और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, इन सब देशों में, मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है। वहाँ ज़मीन के नीचे से पानी नहीं बल्कि तेल ही निकलता है। तो 2017 का डाटा 808,000 बिलियन बैरल्स या 808 बिलियन बैरल्स बोलिए, एक बैरल्स में 200 लीटर्स होते हैं। तो 808 बिलियन बैरल मिडिल ईस्ट में रिजर्व है, जो कि 70 सालों तक चल सकता है अगर इसी रेट से हम यूज करते रहें वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 50 बिलियन बैलन है और ये 10 सालों तक चलने लायक है। अगर पूरे वर्ल्ड का एस्टिमेट लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में 1697 बिलियन बैरल या 1000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का भंडार है। और अगर हम इसी रेट से, जिस हिसाब से आजकल पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, डीजल का यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, वो मात्र हमें 50 साल तक ही चल पाएगा। तो इस तरह से जिस रेट से हम रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए भविष्य में खतरा का संकेत है। ज़्यादा दिन तक तो वो चल नहीं पाएगा। टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, जितना क्रूड मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज होता है एक साल में, उसका 75% उसे विदेशों से मंगाना पड़ता है। 25% ही इंडिया प्रोड्यूस कर पाता है। तो द टेबल गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। मोर इम्पोर्टेंट, इट इज आल्सो टेस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यूज टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स एंड मोर। तो ये वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के भंडार कितना है, इसकी एक एस्टिमेशन हमें मिलता है इस डाटा से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात पता चलती है कि अगर इसी रेट से हम यूज करते रहें तो क्रूड ऑयल तो वर्ल्ड में केवल 50 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब इसीलिए सीएनजी गैस से चलने वाली व्हीकल, सोलर एनर्जी से चलने वाली व्हीकल या बैटरी से चलने वाली कार, इस तरह के बारे में सभी वर्ल्ड के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के चलने वाले मोटर का आविष्कार हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रख करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। आपको मालूम होगा कि रिसोर्स का यूज धरती पर कब से ज़्यादा तेज गति से शुरू हुआ। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में हुआ, तब से मिनरल्स का और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का बहुत तेजी से यूज शुरू हुआ। 1750 के बाद वर्ल्ड में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने शुरू हुए, जिसको कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हर देश अधिक से अधिक विकसित होने की चाह रखता था और अधिक से अधिक विकास करने की होड़ में वो मिनरल्स का अंधाधुंध यूज करने लगा, रूथलेसली यूज करने लगा। और पिछले 200 सालों में इतना हम लोग तेजी से यूज किए हैं रिसोर्स का कि बहुत सारे रिसोर्स की मात्रा घट गई है, डिप्लीटेड हो गए हैं, कमी हो गई है। यहाँ तक कि रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी, अंडरग्राउंड वाटर का भी हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एसिड रेन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया कि जो प्रेजेंट लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक विकास की ऐसी पद्धति है, ऐसी प्रक्रिया है जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और प्रेजेंट लेवल में हम जो अपना विकास कर रहे हैं उससे रिसोर्स इस तरह से यूज करेंगे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी रिसोर्स की कमी नहीं। तो दो तरह का इसमें इम्पॉर्टेंट बात है
कि एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा और दूसरा भविष्य के लोगों की रिसोर्स की जरूरत भी पूरी होगी। ये नहीं कि जैसे अभी क्रूड ऑयल का डाटा लिया गया तो 50 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी 50 साल के बाद भी उनको क्रूड ऑयल मिलता रहे। So sustainable development is such types of development that it does not only protects our environment, but it also does not compromise with the need of the future generation. इसके क्या क्या गोल हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रियल PCI एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चाहता है कि संसार में सभी देशों का पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हो और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आगे बढ़े। रिडक्शन इन पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, लक्ष्य है कि संसार में पॉल्यूशन भी घटे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या लक्ष्य है? रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब रेशनल सोच समझ कर तार्किक ढंग से उसका उपयोग हो। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी की भी जरूरत पूरा हो। तो इस तरह से वी कम टू नो द चैप्टर डेवलपमेंट, दैट development is the need of our, no doubt every country has to make development, and different people have different development goals, and here we are studying economics, so we are studying about the economic development. And economic development in this context, World Bank compare the countries on the basis of per capita income, and Human Development Index compare the countries on 3 bases: per capita income, literacy level, and health status. That is called known as life expectancy. And lastly, we discuss about the sustainable development, that the pace of use of resources is going in such a way that we are not overusing, but there is also threat of getting exhausted of non-renewable resources. So we have to make the development through sustainable development program. So I think you might have got some idea from this chapter and you might have understood it. Okay, thank you to all of you.